टू ईयर सौरभ मिश्रा हमें ये कैलकुलेशन करना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। ईयर टू ईयर अपने को बाइफर्केशन करके जाना है एग्जाम में। ओके तो आपने ईयर टू ईयर कैसे किया, ये बाई कैश करके देखो, मैंने 2021 22 23 लिख लिया और 2021 में मैंने बताया ये 15,000 रुपया अभी भी मिलना बाकी है, तो 21 का 12,000 प्लस 15,000 का टोटल डेबिट साइड में टू रिसीवेबल, मतलब ओपनिंग में 27,000 था इसलिए हमें मिला 12 और 15 22,000, जो 22 साल का देखो 750 था इनकम और मिला कितना 615, तो कितना मिलना बाकी है 135 और 18,000 मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, तो वो रिसीव्ड इन एडवांस है जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। अभी उन्होंने ये भी पूछा है हाउ इट विल बी अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ 2021 एंड 22। तो देखो 2021 के बैलेंस शीट में क्या दिखेगा, 2021 बैलेंस शीट, दिस इज लास्ट ईयर, तो एसेट साइड पे यू विल शो 27,000 सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बोलो नहीं तो रिसीवेबल बोलो, रिसीवेबल इज मोर एप्रोप्रिएट। ओके तो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ये दिख लेना 27,000 एंड 2022 के बैलेंस शीट में रिसीवेबल इज बोथ का टोटल 15 प्लस 135, so what is the receivable 1,50,000 and what is received in advance beta 18,000। so this is how your balance sheet का extract होगा, this is not the full balance sheet, so this balance sheet is extract। तो ये आप लोगों को क्या करना है, this is you have to maintain in your balance sheet, so this is very important question from exam point of view, ये question को अच्छे से solve करना। I hope you got the concept। okay year to year pyk2 mark it as IMP question and this is the solution, see 27,000 income and expenditure 750, 18,000 and 1,50,000, this is the solution of subscription account। अरे इसमें थोड़ा सा गलती हुआ है, दैट आई विल रेक्टिफाई। ओके easy question। now we will move to next adjustment। now I am going to start with important adjustment of every question। okay so जो भी important adjustment है, now in this question what is given in the question, receipt and payment account is given and you are asked to prepare income and expenditure account and balance sheet, you are asked to prepare income and expenditure account and balance sheet। okay sorry तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है। सो व्हाट इज द एडजस्टमेंट, सो नाउ यू विल टेल मी एडजस्टमेंट। नाउ व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, रिसीट। नाउ रिसीट एंड पेमेंट का ओनली वन इफेक्ट यू आर गोइंग टू गिव, इतना इफेक्ट दोगे, वन इफेक्ट। ओके दिस आर द इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। एंड assets and liabilities, opening asset and liabilities is given in the question, so this is given in the particulars। कहां पे दिया होगा, this is given in the particulars। so you can see the question, आप लोग क्वेश्चन भी देखो, ओपन यूर स्टडी मैट एंड वी विल फोकस ऑन ओनली इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। ओके सो देखो, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज 58,000 एंड in your balance sheet investment in 12% securities is 5 lakhs। so beta now receipt and payment is already given in the question, तो उसका कितना इफेक्ट देना है, you have to give only one effect। okay so where you will give this effect, yes beta income and expenditure, no we will open interest account। now we will open interest account and in interest is our income, correct? so mandatory whenever there is adjustment you will open the account। okay so इसमें interest account we are going to open और interest account में what you will write, by cash 58,000। so this is only one effect you will give। ठीक है, एग्जाम में क्या करोगे, इंटरेस्ट अकाउंट ओपन करोगे एंड यू आर गोइंग टू गिव वन इफेक्ट बाय कैश, अंडरस्टूड? तो 58,000 का एक इफेक्ट हो गया। Now what about this investment in securities, where you are going to write it? Investment in 12% government securities. Now how many effect of this? two effects.
two effects. Now see, adjustment has two effects. Okay, so we are going to give two effects. Now, are you going to open investment account? No, because there is no addition in the investment account. There is no addition in the investment account. So where to give second effect? One is in opening balance sheet, which we call it as statement of affairs, and one effect is in closing balance sheet. Okay, so two effects you have to give, opening balance sheet and closing balance sheet. So opening balance sheet और closing balance sheet में आप लिख दोगे. So suppose this is your opening balance sheet. On asset side you will write investment 5 lakhs and closing balance sheet में also investment 5 lakhs. Any difficulty in understanding this? No. Now on 5 lakhs, how much interest you are receiving? So you are in 12%. So this is your income during the year. तो ये आपका income है. अभी income कितना हुआ? 5 lakhs पे 12% means 60,000. 60,000. So to IND, your income will be 60,000. Okay, to income will be 60,000. तो ये आपका income आएगा. And where will give second effect? In the income and expenditure account by interest income. By interest income 60,000. तो इसका 12% का income के two effects आएंगे. One is in IND credit side, one is in account. Okay, and now what is the receivable amount, beta? By receivable 2,000. Where you are going to post it? You are going to post it in the balance sheet asset side, closing balance sheet asset side. Okay, so you got this adjustment. See, remaining adjustments are very simple, but these adjustments are very important. जो ट्रिकी एडजस्टमेंट है मैंने उसके पूरे पॉइंट्स निकाले हुए. ऑल ट्रिकी एडजस्टमेंट आई हैव टेकन कि ये रिलेटेड एडजस्टमेंट वी विल सॉल्व टुगेदर. ओके, सो ये एडजस्टमेंट सबको समझ में आया? वन मोर टाइम विल डू इट इन द क्लास इटसेल्फ. ओके, इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना इफेक्ट दोगे इंटरेस्ट रिसीव्ड का बेटा? वन इफेक्ट. वन इफेक्ट कहां पे दोगे? इन अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट. व्हाट यू विल राइट ओवर देयर? बाय कैश 58,000. By cash 58,000. Now what is the related adjustment? Investment account. Investment account 5 lakhs. Where you are going to post it? First in opening balance sheet and second closing balance sheet. Closing balance sheet. And see how to solve question. I already covered it in the our regular lecture. Okay, तो regular lecture में मैंने already cover किया हुआ है कि how to solve the question line by line. Okay, तो investment और उसके ऊपर कितना % interest income है? 12%. 12%. So what is the income? 60,000. Where to record? First in balance, income and expenditure, and second in account, in the interest account. Interest account में to IND 60,000 and income and expenditure account में by interest 60,000. So किसके किसके effects देने आपको? One is of receipt, one is of asset, and one is of income. रिसीट के कितने इफेक्ट देने? वन इफेक्ट. एसेट के दो. इनकम के 2. एवरीवन अंडरस्टूड? फर्स्ट एडजस्टमेंट विल डू लाइक दिस फॉर ऑल एडजस्टमेंट. सी, तो ये आपका TY के 1 का वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट विच इज रिलेटेड टू इंटरेस्ट. तो मैंने क्या किया? आई हैव सी दिस इज हाउ यू शुड डू योर रिवीजन. यू कैन नॉट सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन. तो आपको मैंने पूरा इजी करके दिया हुआ है. सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. नाउ दिस ओपनिंग बैलेंस शीट वी विल राइट इट इन दी opening balance sheet asset side. Okay, subscription received. Now subscription is account over here. subscription को adjustment है तो subscription we will open account. तो पहले आपको star mark लगा लेने हैं by looking into receivable and received in advance. Okay, या expenses and prepaid. उस हिसाब से अपने को adjustments को mark करना है. You have to mark all adjustments. Now second important adjustment is entrance donation. Very important in this question. Entrance donation is very important. See, on the receipt side you can see 1 lakh is the amount. Last year entrance donation, this is the opening item. Last year entrance donation received but pending membership 1 lakh, and 50% of the donation is capitalized and no pending membership on 31st March 2022, and sum of rupees 20,000 received in the year donation was to be refunded. Very important adjustment. Okay, so what you would do? You will open donation account, entrance donation account. Now entrance donation is
50% is liability and 50% you will record as income. Okay, 50% you will transfer it to capital fund and 50% you will record it as income. So which account you are going to open for this entrance donation? सी आपने ये डिफिकल्ट अकाउंट समझ लेना बेटा. 50% पोस्टिंग आप लोग पास करवा दिए. बहुत इजी है, बहुत इजी. यस, टेल मी. Who is going to tell me this adjustment? बेटा try it. It's okay. If you got the wrong answer, doesn't matter. Try कीजिए, बहुत अच्छे से try कीजिए. ओनली हर्ष ओनली. अरे बेटा सबकी एग्जाम है. हाँ मोहम्मद जी. यस बेटा. Yes, sir. ट्राई इट. हाँ. Yes, sir. वेयर आई विल राइट 1 लाख. रिसीट का 1 लाख. Credit side of the entrance donation account. क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट बाय Yes, sir. कैश By cash. 1 लाख. ओके. Yes, sir. हाँ. नाउ व्हाट अबाउट दिस 1 लाख के? दिस हैज 2 इफेक्ट्स. नो. Two effects. हाँ. Half liability and sir. No, that will do later. Yes, sir. This is opening balance sheet. Balance sheet and closing balance. Liability side. No beta. Opening balance sheet liability side, and in account I will write on the first line received in advance. Okay, so I will write on the first line in account as received in advance. So where I will write this? By. By receiving. See, today I am going to explain you only difficult adjustment. ना मैं simple adjustment explain ही नहीं करने वाला हूँ. So we are going to understand only difficult adjustment from exam point of view. Okay, so after 4-5 adjustment na everyone can do it, and try your 100%. Give your 100%. Though you are getting wrong answer, it's okay. I will rectify you. But try to answer it in the class. So received in advance is beta 1 lakh. Correct? Yes, sir. So how much last year you received 1 lakh and current year you received 1 lakh. So 2 lakhs will be Yes, sir. your total amount during the year related to this year. 2 lakhs is related to this year. Wait. 50% of the entrance fees we will write it pending as capitalized, and there is no pending membership as on 31st March 2022. So there is no pending membership means already our members they already paid and we received. So there is no buy receivable. There is no closing receivable. You got the concept? Yes, sir. हाँ. Now a sum of 20,000 received in October 2021. One applicant was to be refunded as he is not fulfilled requisite membership qualification. So we have certain criteria for members. Now we will you will join our club only if you are a CA or you are doing CA. Now you are not doing CA, you are doing only BCom. You paid me some membership fees, then I go through that membership fee and then I realize, oh, this is not the CA student. तो मैं आपका पैसा रख सकता हूँ क्या? No, sir. No, I cannot give you membership. But you already gave me 20,000 rupees. Now I have to refund it. Correct? Yes, sir. Yes. To refund payable. How much is refund payable? 20,000. 20,000. Where I will show second effect of this closing balance sheet. Closing balance sheet, liability side. Very good. So second effect is closing balance sheet liability side. And where 1 lakh ka second effect? Opening balance sheet, liability side. Very good beta. And now you tell me, out of this 2 lakhs, 20,000 is refund. So how much is our during the year we have to record 1,80,000. Out of 1,80,000, 50% is Oh, income and expenditure. income and expenditure, and 50% I will transfer to balance sheet 90,000. Capital fund. So second effect income and expenditure credit side, and capital fund I will write it on the liability side. Got the concept? जिनको पास होना है ना बेटा वही ये चीजें करेंगे आज. जिनको पास होना ही है सीए कोर्स में
कुछ भी होने दो हमें नाउ टेल मी कितनी मेहनत हम लोगों ने भी ली रहेगी. ऑल डिफिकल्ट एडजस्टमेंट्स वी आर टेकिंग इट टुगेदर. आया ध्यान में. हैव यू सॉल्व दिस क्वेश्चन बिफोर? सर आई एम ट्राइंग सर, इलस्ट्रेशंस कर रहा था मैं कंप्लीट, और आज डिवीजन लेक्चर था तो मैंने देखा. ओके ओके, अभी आपको समझ में आया? कैन यू एक्सप्लेन मी वन मोर टाइम ऑल दिस एडजस्टमेंट? विच अकाउंट यू आर गोइंग टू ओपन? एवरी वन ऑफ यू. एंट्रेंस एंड डोनेशन अकाउंट. हाँ, एंट्रेंस एंड डोनेशन अकाउंट. चलो स्टार्टिंग से बताओ. रिसीट एंड पेमेंट के हाउ मेनी इफेक्ट्स? रिसीट एंड पेमेंट के सर टू इफेक्ट. ओनली वन इफेक्ट ना. ओनली ओनली वन इफेक्ट. रिसीट अकाउंट इज ऑलरेडी गिवन, तो आपको वन इफेक्ट देना है. तो क्या लिखोगे? उधर डेबिट, तो अकाउंट में बाय कैश. हाँ, अकाउंट में बाय कैश. अंडरस्टूड? 1 लाख रुपए. 1 lakh. Yes. Now entrance donation received pending membership. This is additional information. How many effects? 2 effects. बोलिए Recording in progress. बोलिए. How First many in effects? opening balance, 2 effects. First line I will write by received in advance. Advance. How 1 much? lakh rupees. 1 lakh. 1 And lakh second rupees. and second effect? In opening balance sheet liability side. Opening balance sheet liability side. Okay. Sum of 20,000 received. Entrance donation is to be refunded. क्या करेंगे इसका? To refund. To refund. 20,000. And second effect? And Refund payable 20,000. And second effect? closing liability में Closing balance sheet liability side. Very Liability good. side. हाँ. Next. And 50% donation. 50% इस डोनेशन जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी, और तो 50% जो है आपकी कैपिटल फंड में जाएगी. 90,000. एंड बचा हुआ कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा 90,000. पहले समझता था या अभी बहुत ज्यादा क्लियर हो गया? सर आपसे जितना करा वो सब समझ आ जाता है. ओके. जितना भी सर ऑलमोस्ट ऑल पूरे अकाउंट्स आपसे ही कर रहा हूँ. चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू. ओके, आज ये सेशन आपके लिए बहुत बदलाव लाने वाला है. यू विल फोकस नॉट ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चन, बट यू विल फोकस ओनली ऑन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, विच इज एक दिन पहले एग्जाम के ये देखना होता है. ओके, सो आई विल गिव स्क्रीनशॉट्स एट द एंड. तो आप लोग वो फटाफट ये सब एडजस्टमेंट्स को है ना नोट डाउन करके रखना इन योर कॉन्सेप्ट बुक. ओके, ऑल दीज इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स. और आई विल प्रोवाइड इट ऑन आवर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं प्रोवाइड भी कर देता हूँ आज ये. तो व्हाट्सएप ग्रुप पे डालता हूँ. कोई है जो व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने कौन स्टूडेंट है तो मैं आपको भेजता हूँ. तो यू कैन पुट इट ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप ऑल दीज इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स. ओके, बहुत बढ़िया बेटा मोहम्मद, बहुत बढ़िया. यस, थैंक यू. यस. चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट. एंट्रेंस डोनेशन, not entrance donation. Now subscription. Now do subscription. Chalo, subscription adjustment. Yes, you will do this subscription adjustment. You try now. Okay, subscription adjustment. तीसरा चुकले कॉपी पेस्ट. व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कहां से मिलेगा? अजित सर हो आप? सेशन सुन रहे हो? अजित सर, आर यू देयर? Beta, I am very shocked. Only 2-3 students, beta, they are answering. Everyone should try these questions. भले गलत होगा तो. सी, रिसीट एंड पेमेंट का एक इफेक्ट देना है. दिस इज वन इफेक्ट. एंड ऑल दीज एडजस्टमेंट्स हैव 2 इफेक्ट्स. क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा आपका गलत होगा. यस, विल प्रोवाइड यू व्हाट्सएप लिंक. व्हॉट्सअपची लिंक प्रोव्हाइड करना. व्हॉट्सअप लिंक प्रोव्हाइड करना स्टुडंट्स. चॅट सेक्शन मध्ये लिहिना. कॉपी पेस्ट कर. हाँ, कॉपी कर भेजता हूँ. 5 मिनट में बेटा भेजता हूँ मैं. आई विल सेंड यू व्हाट्सअप लिंक. हाँ जी, सौरव मिश्रा, वेरी गुड बेटा. Yes, sir. I will open Subscription account. in subscription account, subscription received, where you will post
Credit side buy cash. वेरी गुड बेटा, बाय कैश. यू आर अटेंडिंग दिस लेक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम, मेरा जो सेशन है, या यू आर वॉचिंग अवर लेक्चर्स? नहीं सर, आप ही के लेक्चर से देखा. बहुत बढ़िया. सब्सक्रिप्शन रिसीव 2,02,750. हाँ. नाउ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. इसका नहीं पता सर. Outstanding means बेटा receivable. What is outstanding? Receivable. Receivable. And this is related to 1st April. 1st April means opening or closing? Opening. Opening. तो opening receivable कहाँ पे लिखोगे बेटा? Left side. Debit side. To receivable. And where we will give second effect? Opening balance sheet, asset side. Where you will give the second effect? Opening balance sheet. Asset side. ओके. तो एक इफेक्ट इधर दिया, एक इफेक्ट ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट में दे देना. एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. Credit side. क्रेडिट साइड बाय रिसीव्ड इन एडवांस. एंड सेकंड इफेक्ट ये liability side closing balance sheet. ओपनिंग बैलेंस शीट ना बेटा. ओपनिंग बैलेंस शीट में यू आर राइटिंग, देन व्हाई क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड? Yes, करेक्ट. sir. हाँ. नाउ व्हाट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31st March 2022? ओपनिंग और क्लोजिंग? This is closing, no? 31st March 22 means. Closing means you will write on the left hand side last line 18,000. Correct? Yes sir. And 7,000 where to write? Asset side. One effect asset side, closing balance sheet asset side. And subscription side credit by receivable. Last line by receivable. बेटा प्रोफॉर्मा करके जाओ, मतलब you will find it very simple. अभी भी आ नहीं रहा है सौरव, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा. बहुत फ्यू डेज आर लेफ्ट. तो आज के सेशन के बाद ये सब लिख के देखो फॉर एवरी अकाउंट. एंड व्हाट इज द बैलेंसिंग फिगर कॉल्ड एज? टू I and income. हाँ, expenditure. टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर. और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कौन से साइड पे लिखोगे? Credit side. वेरी गुड. क्रेडिट साइड. व्हाट इज द बैलेंसिंग फिगर? 15,000 प्लस 2,02,750 प्लस 7,000 minus 18,000 minus 12,000, you are getting 194,750. Okay? Yes sir. Chalo, one more time. One more time. If you are doing it for 2 to 3 times, no, it will be very easy. Chalo, one more time. Subscription account. Do it. Chalo, chalo, chalo. Buy cash. Buy cash 2,02,750. Very good. Outstanding subscription. Opening. Subscription. Yeah. To receivable 12,000. To receivable 12,000. Very Buy good. received in advance 15,000. Buy received in advance 15,000. Very good. Cash. Closing. हाँ, सेकंड इफेक्ट किधर जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड रिसीवेबल एंड ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड रिसीव्ड इन एडवांस. गॉट द आंसर? Liability side. यस. Yes sir. नेक्स्ट. चलो चलो फटाफट. 18,000. Subscription received in advance. ये liability side जाएगा 18,000. And account में? Balance sheet के closing. हाँ, And ये credit side जाएगा. क्रेडिट साइड में. डेबिट साइड में ना इधर क्रॉस में होता है Yes, sir, बेटा. sorry, closing में cross होता है. थोड़ा प्रैक्टिस करो रे बेटा, Cross ऐसा होता मत है. करो, एग्जाम बहुत पास में आया है. एंड बाय रिसीवेबल 7,000. तो 2 IND बैलेंसिंग फिगर. ओके. एंड सेकंड इफेक्ट IND के क्रेडिट में. This you will write it in the opening balance sheet liability side, sorry, closing balance sheet liability side and closing balance sheet asset side. Asset side. Okay, चलो next one. Who wants to try next one? Now very simple बेटा. First link लगने तक था. Now you will find it very simple. And though you are getting wrong answer doesn't matter. चलो आज तो अपने को मेन प्रैक्टिस करना है आज के सेशन का. चैट सेक्शन में व्हाट्सएप ग्रुप बोल दिया है. चैट सेक्शन में यू कैन ज्वाइन ऑन दिस ग्रुप. यस. क्या हुआ, क्यों नहीं जा रहा है? ओके. देखो मिला क्या? देखो श्रुति, नाउ यू आर गेटिंग दिस लिंक. यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन आवर ग्रुप. मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर कि हमारा कोई ग्रुप भी है.
प्राची, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू प्राची. बेटा रीड दिस सैलरी अकाउंट. वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल. प्राची को बहुत ही सिंपल आया है. Yes, sir. यस बेटा, विच अकाउंट यू आर गोइंग टू ओपन? व्हाट ऑब्वियस सर? Salary account. सैलरी अकाउंट. क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो आप? हाँ, Okay. ऑन पेमेंट साइड बाय सैलरीज इज रिटर्न. हाउ मेनी इफेक्ट्स फॉर रिसिट पेमेंट? One. वन इफेक्ट. चलो वन इफेक्ट. वेयर टू गिव फर्स्ट इफेक्ट? इसी में two cash. टू कैश 1,20,000. करेक्ट? Yes, sir. ओके. Outstanding. एंड Sir, इसको भी sir ये two आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. payable है ना? हाँ, आउटस्टैंडिंग मीन्स हियर इट्स अ पेबल. सो एक्सपेंस पेबल. एक्सपेंस पेबल बेटा देखो, इधर बाय पेबल लिखते हैं, इधर टू पेबल लिखते हैं. करेक्ट? Yes, sir. एंड टू प्रीपेड बाय प्रीपेड. तो प्रोफॉर्माज आने चाहिए आपको. आई ऑलरेडी टॉट प्रोफॉर्माज मेनी टाइम्स. तो जो स्टूडेंट्स हु आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, इट्स ओके बेटा, यू कैन सी दिस प्रोफॉर्मा एंड यू कैन डू दिस रिवीजन. तो जो लोग पहली बार कर रहे हैं, डोंट गेट अपसेट कि आपको भी आएगा, डोंट वरी. टू पेबल. टू पेबल कहां पे लिखेंगे बेटा? 8,000. सेकंड इफेक्ट किधर जाएगा इसका? Sir, इसका closing balance sheet. क्लोजिंग बैलेंस शीट Liability. लाइबिलिटी साइड. वेरी गुड. क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में सेकंड इफेक्ट जाएगा. एंड व्हाट अबाउट बैलेंसिंग फिगर? By IND. बाय IND 1,28,000. एंड वेयर टू गिव सेकंड इफेक्ट? Second effect IND के debit में. IND के डेबिट साइड में टू सैलरी. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. तो सैलरी अकाउंट, एवरीवन अंडरस्टूड सैलरी अकाउंट? यस सर. चलो नाउ डू फॉर इंश्योरेंस. Okay. डू फॉर इंश्योरेंस. दिस इज 1 अप्रैल का इंश्योरेंस. Okay. Opening है वो. ओपनिंग इंश्योरेंस है. क्लोजिंग इंश्योरेंस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. Sir, two cash. 5,000. टू कैश 5,000. हाउ मेनी इफेक्ट्स? One. इसका एक इफेक्ट. वेरी गुड. एंड Sir, two prepaid. 1,000. ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड. ओके. Yes, sir. Yes, sir. टू प्रीपेड 1,000 इन अकाउंट्स एंड ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड Asset side पे. 1,000. करेक्ट? 1,000. Yes, sir. एंड बाय Sir, वो दिख नहीं रहा. IND. IND 6,000. करेक्ट? एंड सेकंड इफेक्ट? IND के two insurance. टू इंश्योरेंस. करेक्ट बेटा. इजी. Yes, sir. Any difficulty till now? Students, you must try this question. You must try each and every question. Okay, जितना ट्राई करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी क्वेश्चन, यू कैन टेल मी एंड सी. मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग ऑल क्वेश्चंस, वी फोकस ओनली ऑन एडजस्टमेंट्स. Okay, in exam we have to solve it by line and then we have to give two effects for adjustments. तो वो एडजस्टमेंट के टू इफेक्ट्स आई एम डूइंग ओवर हियर. अच्छा, कुणाल पूछ रहा है कि सैलरी वापस एक्सप्लेन करो. बेटा सैलरी एक्सप्लेन करो प्राची, उनको सैलरी अकाउंट एक्सप्लेन करो बेटा प्राची. चलो सैलरी अकाउंट कुणाल को एक बार वापस एक्सप्लेन करो. सैलरी अकाउंट हम बनाएंगे, उसमें इधर टू देखो, कैश ये पेमेंट साइड पे, तो बेटा कुणाल यहाँ पे डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश लिखेंगे. 1,20,000. Yes. करेक्ट? और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो क्लोजिंग में है, इसीलिए उसको टू पेबल करके हम ये लिखते हैं. क्लोजिंग पेबल है. क्लोजिंग पेबल. Yes. क्लोजिंग पेबल का प्रोफॉर्मा होता है टू पेबल टू पेबल 8,000. 8,000. सेकंड इफेक्ट किधर जाएगा? इसको क्लोजिंग के में लायबिलिटी साइड पे. ओपन. हाँ, क्लोजिंग. क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में दूसरा इफेक्ट जाएगा. यस सर. क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में दूसरा इफेक्ट. दूसरा एंड फिर बाय IND 1,28,000. इसको हम डालेंगे Simple. IND के, सी बेटा, एक्सपेंडिचर का क्या प्रोफॉर्मा है बेटा प्राची, सबको बोलो. आई नो आपको आता है. टू कैश टू पेबल, कैश टू पेबल. तो ये होता है बाय पेबल. ओके, तो इधर आता है टू प्रीपेड
बाय प्रीपेड, तो बाय प्रीपेड, बाय आईएनडी, बाय बाय कैश, बाय आईएनडी, आईएनडी, इसमें आईएनडी, इतना सिंपल है। और इनकम का प्रोफॉर्मा होगा तो बाय कैश, बाय कैश, जो नहीं मिला वो बाय रिसीवेबल, बाय रिसीवेबल, वेरी गुड। टू तो यहाँ पे रिसीवेबल, आएगा टू रिसीवेबल, बाय बाय रिसीव्ड इन एडवांस, टू रिसीव्ड टू इन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस टू आईएनडी, एंड आईएनडी। अभी देखो ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट, और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ये भी वैसा ही, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट, डेबिट साइड इज ऑलवेज एसेट साइड। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड। टू कैश, रिसीट एंड पेमेंट, पेमेंट साइड। बाय कैश, रिसीट साइड इनकम का। एंड बाय आईएनडी, आईएनडी के डेबिट में एक्सपेंस, एंड टू आईएनडी, आईएनडी की क्रेडिट में इनकम। सिंपल। दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस। इज वेरी सिंपल। ओके, चलो। नाउ दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, वेरी इजी एडजस्टमेंट। सी, पेमेंट साइड 12,000 and 14,000, and it's a club matter of policy to charge income and expenditure account for all purchases. See, glasses can be, you can use in the next year, crockery you can use in the next year, टेबल के ऊपर का कपड़ा होता है बिछाने का, दैट इज लिनेन, तो दैट कैन बी यूज इन दी नेक्स्ट ईयर। ओके, सो दिस इज एक्चुअली, देखने गए तो एसेट है, but specifically sentence is given that's a matter of policy, they charge it to P&L, so you cannot record it as the asset, you should charge it in the income and expenditure debit side. तो इसका second effect किधर जाएगा? Second effect you will give it in the income and expenditure debit side, though these are current assets. Okay, तो ये लोग कहां पे डाल देते हैं? आईएनडी के डेबिट में। इट्स गिवन स्पेसिफिकली इन द क्वेश्चन, अदरवाइज आपने कहां पे लिया रहता? इफ दिस सेंटेंस इज नॉट गिवन तो यू विल रिकॉर्ड इट अंडर करंट एसेट्स। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, यस। 7 number. Now receipts. Now there is no adjustment. Receipts from, now this is hotel. तो होटल में कॉफी रूम, सॉफ्ट ड्रिंक्स बेच के, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, वन इफेक्ट इज रिसीट। तो वेयर टू गिव सेकंड इफेक्ट प्रिंस? वेयर टू गिव सेकंड इफेक्ट? बस इतना ही है, तो वेयर टू गिव सेकंड इफेक्ट? यस ध्रुव बेटा, कहां पे दोगे सेकंड इफेक्ट बेटा? सर आईएनडी के उसमें क्रेडिट में। वेरी गुड बेटा, तो इसका सेकंड इफेक्ट आईएनडी के क्रेडिट साइड में। ओके, till now any difficulty? Everyone is clear with the examples? 7 items we have completed. Entrance donation was very difficult, investment का भी difficult था, सब्सक्रिप्शन इजी था बट यू शुड नो दी प्रोफॉर्मा, सैलरी बहुत इजी था, इंश्योरेंस इजी था। 6 and 7 आर वेरी इजी। ओके, नाउ सॉल्व लास्ट एडजस्टमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो ये करो। सेल ऑफ एसेट ऑन द रिसीट साइड, fixed asset 5 lakhs, opening balance, cost of assets sold 10,000 and depreciation 10% on assets. Open asset account. Open asset account. आज का सेशन you won't get it on recorded one. तो स्टूडेंट्स इस रिक्वेस्ट कि भले समझो या ना समझो, लास्ट मिनट तक बने रहना ताकि बाद में आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आई एम टेकिंग ऑल इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। हर्ष, आज के सेशन का फायदा हो रहा है ना बेटा आपको? यस सर, हो रहा है। क्या फायदा हुआ बेटा? सर ये सब वैसे तो मेरे को पता थे, बट अभी रिवाइज हो गया। और जैसे बाई पेबल टू पेबल थे, तो मैं पहले तो बाई पेबल करता था, बट कभी कभी दिक्कत हो जाती थी परफॉर्मा में, तो अभी पूरे परफॉर्मा फिर से याद हो गए, रिमेंबर हुए। ये फायदे हुए हैं जो सारे रिवाइज हो गए। चलो बहुत बढ़िया। यस,
हु वांट्स टू ट्राई? श्री कृष्णा भाई, चलो बेटा श्री कृष्णा बोलो। कैन आई राइट बाय कैश बेटा श्री कृष्णा? तनु बेटा बोलो। हेलो, कैन आई? हाँ, सेल ऑफ एसेट का कितना इफेक्ट देंगे? 10,000. 8,000 नो? 10,000. हाँ बेटा लाइन बाय लाइन जाओ। सेल ऑफ एसेट का 8,000 का इफेक्ट कहां दोगे? रिसीट में दिया है तो बाय कैश, अकाउंट में बाय कैश 8,000, करेक्ट? हाँ. ओनली वन इफेक्ट। 1st April 2021 फिक्स एसेट। हाँ. And to cash 10,000. नहीं बेटा रहने दो तनु, यू आर नॉट सॉल्व दिस, यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा। ठीक है, आप ध्यान देना, आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। हाँ बेटा धैर्य, यस बोलिए बेटा। हेलो सर। सर एक्चुअली स्क्रीन क्लियर नहीं है अभी नहीं सर, नहीं दिख रहा प्रॉपर क्लियर। आपका इंटरनेट का इशू होगा धैर्य। नहीं सर। मोनू आपका स्क्रीन क्लियर है? यस सर। इंटरनेट का इशू है धैर्य, बाकी सबका क्लियर है। हाँ ठीक है सर, आई विल ट्राई। हाँ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट 5 lakhs। मोनू यस सर। क्या होगा फिक्स एसेट का, क्या लिखूं? 5 lakhs एसेट ऑन 1st April 2000। टू बैलेंस बीडी जाएगा 5 lakhs। वेरी गुड, एसेट है तो डेबिट है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 lakhs एंड वेयर टू गिव सेकंड इफेक्ट? सर बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। यस सर। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड is 10,000 and we will assume sold on 1st April only. हाँ, so first बैंक होगा 10,000। no beta, by cash we have already written 8,000. Now why to bank? Yes. Wrong. So what is the meaning? 10,000 cost की asset we sold for 8,000. So we are in loss or profit? Loss. By profit and loss 2,000। हाँ, by loss 2,000. Okay, by loss Yes. 2,000. And where to record this loss? Because we assume that we are selling asset on 1st April only. When we are selling the asset on 1st April, so you don't have to provide any depreciation. So don't provide depreciation on assets sold. Understood? Yes. Don't provide depreciation on assets sold. So by loss will be 2,000. And where to give second effect of this? Income and expenditure. Debit side. Yes, very good. And now what is the depreciation? What is the balance you left with? 4,90,000 ना? Yes sir। 10% 49,000, ये भी IND के डेबिट में जाएगा। And what is buy balance carried down? 490 minus 49, 4,41,000. Where do you record this? Balance sheet, closing balance sheet, asset side. 4,41,000. Got the concept? One more time. Yes sir। चलो one more time. डिफिकल्ट विल डू फॉर 2 times, तो आपको याद रह जाएगा। हाँ जी बोलिए। 8,000 By cash। बाय कैश 8,000, ओनली वन इफेक्ट। Yes। हाँ 5 lakhs सर टू बैलेंस बीडी 5 lakhs। ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। second effect opening balance sheet asset side, to balance brought down and opening balance sheet asset side. Very good. Then 10,000 8 लाख का सोल्ड। यस। हाँ
2000 is our loss. Hmm. So by profit and loss account 2000. बाय लॉस नॉट इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है वो. हाँ 2000. एंड वेयर टू गिव दिस बाय लॉस? Income and expenditure side. डेबिट साइड. हाँ इधर क्रेडिट उधर डेबिट ऐसा बोलिए. हाँ बराबर है. एक्सपेंडिचर साइड. देन बाय डेप्रिसिएशन. हाउ यू कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन? Around 4,90,000 10%. सेकंड इफेक्ट. Income and balance sheet closing balance. ओए IND डेबिट साइड. डेप्रिसिएशन. Yes, sir. Depreciation, yes sir. एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन. सर ये जाएगा बैलेंस शीट में. क्लोजिंग बैलेंस शीट कैसे? क्लियर? Yes sir. होल पिक्चर इज क्लियर नाउ. Yes. गलतियां हो रही है स्टूडेंट्स. यू आर डूइंग मिस्टेक्स. यू आर नॉट फोकसिंग ऑन एडजस्टमेंट्स. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन कि आपको हर एक इफेक्ट कहां जाएगा वो ध्यान में देना है. नाउ यू अंडरस्टूड हाउ टू डू स्टडी. All difficult adjustment you put together and solve one by one. Okay. Yes, many students are not participating. तो बेटा खुशी गुप्ता. ओके कोई बात नहीं बेटा. खुशी आई एम गोइंग टू आस्क यू. डोंट वरी बेटा. ठीक है. सो चलो तो इन दिस क्वेश्चंस विच आर डिफिकल्ट एडजस्टमेंट? इंटरेस्ट, एंट्रेंस डोनेशन, देन सब्सक्रिप्शन, सैलरी इजी था, इंश्योरेंस इजी था, होटल आइटम रिलेटेड आइटम्स आर इजी, एसेट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था थोड़ा सा. ओके बट वंस आई एक्सप्लेन इट वेरी सिंपल. ठीक है चलो नाउ वी विल फोकस ऑन दिस एडजस्टमेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कंजम्पशन एंड क्रेडिटर्स. लेट्स सी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट. For this we will open, I will give you hint. One is trading account and one is creditors account. One is trading account and one is creditors account. This is a hint of this question. Trading account and creditors account. Very very important adjustment. One of the favorite adjustment. Mock test is on 22nd and in Pune branch of ICI we are taking mock test discussion. एक रश्मि लोनकर मैडम भी लेने वाले हैं for mathematics and one I will take. तो we are going to conduct that mock test discussion on 27th or 28th. Okay, तो वो लेक्चर भी आप अटेंड करना. That is also very helpful. mock test का डिस्कशन होगा. Yes, any one of you. Kush Mishra. Yes beta Kush. Try. Payment side creditors है. How many effects? सर क्रेडिटर्स पेमेंट साइड में तो वन इफेक्ट है. वन इफेक्ट. हाँ क्या लिखूं? सर क्रेडिटर्स अकाउंट में जाएगा पेमेंट, क्रेडिटर्स तो क्रेडिटर्स साइड में जाएगा टू कैश. क्रेडिटर्स अकाउंट में टू कैश 15,20,000. वेरी गुड. नेक्स्ट ओपनिंग क्रेडिटर्स. सैलरी क्रेडिटर्स जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,12,000. वेरी गुड. 1,12,000. एंड सेकंड इफेक्ट? सेकंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट. ओपनिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. ओपनिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. वेरी गुड. नेक्स्ट स्टॉक जाएगा ये
ओपनिंग स्टॉक है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ओपनिंग स्टॉक है To opening stock 3,80,000. And where to give second effect? सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड. बहुत स्लो बोल रहे हो कुछ, ध्यान में नहीं आता क्या? फटाफट बैलेंस शीट वाले में होता है दिक्कत ना। जल्दी जल्दी बोलना है बेटा. ओपनिंग स्टॉक एसेट साइड. परचेसेस परचेजेस होगा, परचेजेस बाय परचेजेस 18 लाख किधर? ट्रेडिंग अकाउंट में या क्रेडिटर्स अकाउंट में? हाँ, क्रेडिटर्स अकाउंट, बाय परचेसेस. वेरी गुड. 15 lakhs. And where to give second effect? सेकंड इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस, किधर? ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में बाय परचेस या टू परचेस? टू परचेज. टू परचेस. वेरी गुड. नेक्स्ट. क्लोजिंग स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक, और ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक 2,10,000. क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड. क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड. सेकंड इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड. हाँ, देन तो इसके बाद क्रेडिटर्स का जो बैलेंस आएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन. बैलेंस ब्रॉड कैरिड डाउन. Closing balance sheet liability side. Yes. And what about trading account balancing figure? ट्रेडिंग अकाउंट का सर नहीं पता क्या होगा. Important one, by consumption. IND के डेबिट में जाएगा. Where you will post it? आईएनडी के डेबिट. IND के डेबिट में this balancing figure you are going to close, and this balancing figure carried down. Understood? यस सर. चलो, one more time. Do by your own. Yes, other student बेटा. कुश मिश्रा, आपने बहुत गलतियां किया कुश. Yes. बहुत गलतियां. एंड IMP अकाउंट कंजम्पशन एंड क्रेडिटर्स. ध्रुव, आपने ऐसे डिफिकल्ट एडजस्टमेंट की लिस्ट बनाई है? यस सर. ऐसे आपने डिफिकल्ट एडजस्टमेंट की लिस्ट बनाई थी बिफोर दिस एनपीओ टॉपिक? नो सर. नाउ यू अंडरस्टूड नो क्या करना है? यस सर. हाँ, नाउ every adjustment you have to see an important adjustment का effect. So for revision purpose and for second revision, third revision, you will solve all this by using time tick. वो अपना टिक टिकी जी का टेक्निक. Yes sir. You already solved all these questions बेटा, correct? But not in the same way. अभी आपको पूरा फोकस आएगा कि करना क्या है. Every adjustment. Yes sir. Yes. So do not solve each and every question. Try to pick difficult adjustment. मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है, आपको पढ़ाई कैसे करनी है. I will show you. चलो ध्रुव करो एक्सप्लेन बेटा. कौन से दो अकाउंट बनाओगे? सर ट्रेडिंग अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट. क्रेडिटर्स अकाउंट. वेरी गुड. हाँ बोलिए. सर क्रेडिटर्स अकाउंट में टू कैश 15,20,000. हाउ मेनी इफेक्ट्स? सर वन इफेक्ट यहाँ पे आएगा और 15,20,000. एक ही इफेक्ट ना, रिसीट पेमेंट में है एक ही इफेक्ट. हाँ नेक्स्ट. सन्ड्री क्रेडिटर. सन्ड्री क्रेडिटर्स. सन्ड्री क्रेडिटर्स बाय बैलेंस बीडी. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच? 1,12,000. सेकंड इफेक्ट किधर? ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. हाँ, ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. यस सर. स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक. हाँ, टू ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट 3,80,000. 3,80,000. वेरी गुड. हाँ, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड. ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड. नेक्स्ट. परचेज में ड्यूरिंग द ईयर 15 लाख. बाय परचेज क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स में बाय परचेसेस 15 lakhs. 15 लाख. और ट्रेडिंग अकाउंट में टू परचेजेस 15 लाख. टू इफेक्ट्स ओवर. टू परचेसेस 15 lakhs. हाँ, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वाज 2,10,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट. बाय क्लोजिंग स्टॉक 2,10,000
And second effect, balance sheet asset, closing balance sheet. closing balance sheet, stock 2,10,000, closing balance sheet. Balancing figure By consumption. by consumption, where you will put this figure IND के डेबिट साइड में. हाँ. And to balance carried down, where you will put this figure? Closing balance sheet liability side. क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड. चलो, सो वी हैव कंप्लीटेड TY के वन क्वेश्चन, ऑल डिफिकल्ट एडजस्टमेंट्स टुगेदर. ओके, सभी एडजस्टमेंट्स को हमने समझ के किया है. We will solve 2 more questions, beta. Now it will be very easy for you, and same thing you will do for all questions. Okay, sir. Okay, chalo, very good. Now in same question, TYK 3, receipt and payment is given, and you are asked to prepare this. Chalo, chalo, try karo. Yes, beta, you can raise your hand. Though you are getting the wrong answer, it's okay. I will rectify you, but you try by your own. खुद से try कीजिए. You will find it very simple. Yes. Yes, beta. Thanmay beta. Yes. Good afternoon, beta. चलो. Donation. Receipt and payment is given. So how many effects for donation account, beta? Receipt and payment, only one effect. हाँ. That is in the income side, that is credit side, sir. By Cash. Very good. And this donation 15,000 is raising for revenue expenditure. So this donation you treat it as a IND item or balance sheet item? IND item. IND item. So this raised for meeting revenue expenditure. So this is revenue receipt. So I will transfer it to IND. And where to give second effect? IND credit side. Over. Okay? Yes, sir. Over, beta. This is very simple adjustment. Yes, sir. So you understood donation. Just you have to transfer by cash. And to IND, and second effect is in IND credit side. Yes, sir. Tell me interest on investment. Interest on investment, it is in the receipt side, sir. It will have only one effect. It will be transferred to the income side, that is the credit side, sir. No, In the why account. I have given this adjustment? Because in question investment amount is not given. Okay, sir. So we have to find out investment amount. Now beta, on 100 rupees how much interest you are getting? 9% per annum, no? Tanmay, on 100 rupees you are getting 9 rupees interest, correct? Tanmay, क्या हुआ? हाँ, Yes, sir. 9 rupees interest. So if investment is of 100, you are getting 9 rupees interest. And if you are getting 9,000 interest, what is the investment value? 9,000. Into 100 divided by 9. It is simple, no beta? Yes, sir. Increase 2 zeros. Yes, sir. 3 zeros, sorry. Increase 3 zeros. 100 में 3 zero add करो. How much? Yes, sir. 1 lakh. 1 lakh. 9,000 will get in this, sir. 1 lakh na? Yes, sir. So 1 lakh where to write? Onto the debit side, sir. Credit side. No beta. Opening balance sheet asset side and closing balance sheet asset side. Yes, sir. इन्वेस्टमेंट कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? वी रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट इन एसेट साइड. Side, sir. Yes, sir. तो 9,000 का सेकंड इफेक्ट वी विल गिव इन. डोंट ओपन इंटरेस्ट अकाउंट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड. Income and expenditure account credit side, and from this interest you will calculate investment. And what is the value of investment? 1 lakh, sir. 1 lakh. Where to record this? Onto the asset side, sir. हाँ, Balance sheet. opening and closing asset side. Sure. Over. So why I have taken this question? Because I want to tell you to find out the हाँ. And we have to find the interest on that.
yes, and हाँ, You have to find the value of the investment. yes, income and expenditure directly you can transfer interest. No need to open interest account because there is no opening and closing receivable. Yes, sir. Yes, easy. Yes, sir. Very much. Okay, अभी ज्यादा क्लियर हुआ क्या पूरा? Yes, sir. Completely. As compared to regular batch, because in regular batch we focus on every question. Here we are focusing on every adjustment. Yes, sir. Chalo. Now this medicine, creditors and stock similar to this, consumption and creditors. Yes. Now you can complete by your own. Chalo fatafat. Chalo, every one of you. Stock is given, opening and closing. Creditors are given, opening and closing. Payment is given. Chalo, you can do by your own now. Who wants to answer? Raise your hand. Only 5-6 students want to pass. Other students try. Everyone beta, try everyone. मोनू ने किया, धैर्य है. New students I want. यस बेटा, खुशी को पूछता हूं. यस खुशी बेटा, यस सर. कौन से दो अकाउंट ओपन करूं? सर मेडिसिन क्रेडिटर्स अकाउंट एंड स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट. वेरी गुड बेटा. मेडिसिन ट्रेडिंग अकाउंट, मेडिसिन क्रेडिटर्स अकाउंट. यस. चलो, पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई. हाउ मेनी इफेक्ट्स? सर 1 इफेक्ट. कहां पे दू? सर क्रेडिटर्स अकाउंट में 2 कैश. वेरी गुड. 2 कैश 30,000. यस. स्टॉक ऑफ मेडिसिन. हाउ मेनी इफेक्ट्स? सर 2 इफेक्ट्स. वेरी गुड. हाँ, स्टॉक ऑफ मेडिसिन. ओपनिंग बैलेंस शीट. टू ओपनिंग स्टॉक. यस. बाय क्लोजिंग स्टॉक. यस 15,000. And second effect, opening balance sheet asset side, closing balance sheet asset side. Asset side. Amount due for medicine supply. So can I write it as creditors account? Yes sir. Amount due for medicine supply means creditors accounts. हाँ. Sir debit side 9,000. Buy balance brought down 9,000. To balance carried down. Debit side कौन बोलते हैं? Credit side ना बेटा. Creditors is credit. Yes sir. Khushi, you have not attended my lectures. No sir. ठीक है, कोई बात नहीं. अभी समझ में आ रहा है ना? Yes sir. थोड़ी गलती हो गई बेटा, करना चाहिए था रेगुलरली. कोई बात नहीं बेटा, इंटरमीडिएट में मिलेंगे हम लोग. Sure sir. हाँ, सो क्रेडिटर्स को बेटा क्रेडिट बैलेंस होता है. Okay sir. So buy balance brought down and to balance carried down. Where to give second effect? Sir 9,000 will be shown in opening balance sheet creditors. Liability side and closing balance sheet liability side 13,000. Yes. Now what is the balancing figure of creditors? What I will call it as? Buy balance carried down. No बेटा, how buy balance carried down? It is buy purchases. No, creditors से हम लोग क्या करते हैं? Purchases. Purchases. हाँ, 30. It's okay बेटा. Plus 13 minus 9. At least you tried it. 34,000. Yes sir, it will be shown in trading account. 2 purchases. हाँ, 2 purchases 34,000. And where to give next balancing figure का effect? Sir trading account. By consumption. By consumption. And where to give this effect? Second effect of this? Sir income and expenditure account debit side. Very good. Same adjustment beta. Khushi, your understanding is good, but concepts are not very clear, but your understanding is good. You can easily identify all this. ठीक है? Okay sir, thank you. Yes. Very good beta. So everyone understood this medicine account is very important. This medicine account is very important.
two effects. I will give you time to take screenshots at the end, so you can note down all these important adjustments, and I will teach you also how to do these important adjustments in every question. तो जब भी आपको कोई नया क्वेश्चन मिलता है तो you can write like this, all important adjustments together. This is very simple. Equipment account. Who will explain? चलो न्यू स्टूडेंट्स बेटा, खुशी को तो कॉन्फिडेंस आ गया. हाँ कुणाल, वेरी गुड. ये कॉन्फिडेंस तो बढ़ा रहे हैं हम लोग आपका. इक्विपमेंट अकाउंट, चलो. यस सर, इक्विपमेंट अकाउंट टू कैश. बेटा कुणाल, आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो या फर्स्ट टाइम आए हो? सर फर्स्ट टाइम आया. कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं. वी आर रनिंग क्लासेस, ये आपको पता है, एलवीसी. यस सर. तो क्यों अटेंड नहीं करते हो आप? ठीक है, कोई बात नहीं, इंटर में करना. ओके. यस सर. हाँ, टू कैश. आपको इंटरेस्टिंग लगा आज का सेशन? समझ में आ रहा है पूरा? यस सर. क्या फायदा हुआ आपको? एडजस्टमेंट सर, जो डिफिकल्ट एडजस्टमेंट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो रही है. ओके. अकाउंट्स बनाते जाओ. आप कैसे करते हो? एडलेस करते हो या अकाउंट्स बनाते हो? सर अकाउंट्स बनाता हूँ. अकाउंट्स बनाते हो, वेरी गुड. हाँ, तो टू कैश. आपका उसका पार्टनरशिप अकाउंट की एलडीसी क्लासेस देखी थी, नहीं अच्छी लगी? नहीं अच्छी थी, वही अच्छा. देखी थी मैंने. अच्छा, देखते हो ना, मतलब. हाँ, तो अच्छी बात है ना. मैं आपको वही पूछ रहा था कि आप पहली बार ही अटेंड कर रहे हो क्या, ऐसा लगा मुझे. चलो, अच्छी बात है. हाँ, बोलिए बेटा. टू कैश 15,000, करेक्ट? यस सर. हाँ. वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट 21,000 एंड 30,000. हाउ मेनी इफेक्ट्स? सर टू इफेक्ट्स. बोलिए. बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी. 21,000. Yes, sir. Opening balance sheet and by balance carried down. ये Closing balance sheet, asset side. Asset side. And what is the balancing figure we'll call as? Sir depreciation. Very good. By depreciation is a balancing figure, and second effect IND के debit में. E account sir. Very good बेटा, very good. Last one. Charity show collection and charity show expenses. So we will take a difference of this in the income side. IND के credit side में. How much we will take? 11,000. How much we will take? Difference of this 11,000. That's why I have given it. It is very simple actually, but you should know कि we have to take a difference in the income side. Okay? अगर सर सेपरेट लिखेंगे तो चलता है, but more correct is to जब साथ में होता है ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो डायरेक्टली नेट फिगर बताते हैं. सो इसको बोलते हैं नेटिंग ऑफ. क्या बोलते हैं इसको? नेटिंग करके बताना, नेटिंग ऑफ. यस सर. Receipt and payment you cannot make it individually. Sorry, netting off. You have to write it separately. Receipt payment में separate लिखना पड़ेगा, but income and expenditure में you have to take net off. यस सर. Okay, netting off. ये याद रखना. कौन सा डिफिकल्ट था इसमें से आपके लिए? डोनेशन वॉज इजी. इंटरेस्ट से क्या किया हमने? इंटरेस्ट से क्या निकाला? इन्वेस्टमेंट निकाली. इन्वेस्टमेंट. मेडिसिन क्रेडिटर्स एंड मेडिसिन स्टॉक इसके जैसा ही था क्या? यस सर. इसी में ही थोड़ी मतलब मुझे डिफिकल्टी हुई थी, लेकिन आई अंडरस्टैंड. यू अंडरस्टूड इट नाउ, वेरी गुड. इक्विपमेंट का बैलेंसिंग फिगर डेप्रिसिएशन एंड चैरिटी शो नेट ऑफ करना है. गॉट द कॉन्सेप्ट? यस सर. चलो, वेरी गुड. नेक्स्ट वन. Now for illustration 11 we are trying this adjustment. बेटा this is the last question I will take for NPO. नहीं, और एक ले लूंगा 10 number and then we will stop for NPO. You want कौन सा? चैट सेक्शन में लिखो. You want more practice for NPO or
final accounts. So accordingly I will manage because 15 minutes I am going to take this adjustment. तो आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा है या फाइनल अकाउंट? फाइनल अकाउंट में नथिंग, इज बैलेंस शीट एंड P&L is you have to prepare by looking into adjustment. All of you बेटा who are attending it for the first time can answer. Okay, write it in chat कि आपको कौन सा चाहिए. So accordingly we will manage. सब लोग लिख रहे हैं एनपीओ. फाइनल अकाउंट विल डू बट मोर कौन सा, बिकॉज एनपीओ के और 2 क्वेश्चंस है. सर हाँ बेटा बोलिए. एनपीओ में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इसके करवा दो थोड़े. और फाइनल अकाउंट में मुझे बैड डेट प्रोविजन की 2 एडजस्टमेंट आ जाती हैं सारी एक साथ, उसमें प्रॉब्लम आती है. विल डू फॉर यू, डोंट वरी. थैंक यू सर. यस ठीक है. ऑल आर राइटिंग एनपीओ. शायद से आज का फायदा ही हो गया आप लोगों को वेबकास्ट का. थैंक्स टू प्रिया मैम, बीओएस, बहुत बढ़िया. चलो डू दिस. टुडे मॉर्निंग आई वोक अप एट 5 o'clock और मैंने ये फाइल सेपरेटली आपके लिए बनाया. आई प्रिपेयर्ड इट फॉर यू. आज सेपरेटली ये सब काम चालू था. ऑलमोस्ट 4 to 5 hours लग गए मुझे ऑल दिस फाइल प्रिपेयर करने को. तो आई एम अ फैकल्टी बट आई नेवर ट्राइड इट इन दिस 2 hours का लेक्चर. तो आज बहुत मेहनत किया हम लोगों ने. आज सुबह 5 बजे से उठा है मैं और मेरा स्टाफ. यस चलिए चलो इन्वेस्टमेंट अकाउंट. नाउ इन दिस क्वेश्चन वी विल ओपन इंटरेस्ट अकाउंट ऑल्सो and investment account also. We will open 2 accounts, interest, now investment. Yes beta, thank you all of you. Yes, new student who wants to try? बस इतने स्टूडेंट्स में इतने से लोग ट्राई करेंगे. अलीशा, अनन्या, अनन्या वुड यू लाइक टू ट्राई दिस? आई विल हेल्प यू आउट. ट्राई कीजिए अनन्या, कुछ नहीं होता. यस बेटा ट्राई करो बेटा अनन्या, कुछ नहीं होगा. आई विल हेल्प यू. डोंट वरी अबाउट योर आंसर. ट्राई इट. चलो ठीक है, नहीं बोलना है, सिमरन को बोलना है. चलो बेटा सिमरन, वेरी गुड. हाँ यस सिमरन बोलिए. टू इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी. सिमरन आई कैन नॉट हियर यू. धैर्य बोलिए बेटा. हेलो बोलिए. हाँ सर, पहले तो इसका नेट फिगर निकालेंगे. नहीं बेटा नेट फिगर कैसे निकालेंगे भाई, लाइन बाय लाइन चाहिए ना. टू इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज रिसीट साइड, तो वेयर टू राइट इट? इन इंटरेस्ट अकाउंट. हाँ डेबिट साइड, नहीं क्रेडिट साइड. सॉरी क्रेडिट साइड व्हाट? बाय कैश. बाय कैश 8000, इसीलिए ट्राई करना जरूरी है. इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी, इन विच अकाउंट? इंटरेस्ट अकाउंट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड. टू कैश 40,000. चलो एक इफेक्ट इसका हो गया. हाँ इन्वेस्टमेंट इन, उसका एक ही इफेक्ट आएगा. हाँ एक ही इफेक्ट आएगा. यस यस रिसीट पेमेंट 1 इफेक्ट. हाँ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज 1,50,000 1 April 2021. हाँ उसका 2 इफेक्ट आएगा. एक तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड, टू सिक्योरिटीज, नहीं सॉरी टू बैलेंस. क्या कर रहे हो बेटा, बहुत पहली बार आए क्या धैर्य लेक्चर को? हाँ सर एक्चुअली बहुत बड़ी गलती हो गई है. इतना ही बोलूंगा मैं. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब योर, यस मतलब योर अंडरस्टैंडिंग इज गुड बट अटेंड इट रे. आप लोग आपके फ्रेंड्स को भी बताते जाओ कि भाई इंस्टीट्यूट इतना अच्छा इनिशिएटिव लेता है आपके लिए. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000 ओपनिंग बैलेंस. सेकंड इफेक्ट ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड. वेयर इज सेकंड इफेक्ट? ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड. चलो
interest on securities is to be calculated at 5%, including this interest you have, sorry, this investment you purchase on 1st October. अभी इसका क्या मीनिंग है? 1 अक्टूबर मतलब इफ अगर तो 6 महीने का होगा, 6 महीने का। हाँ, तो इसका इनकम इफ वी कैलकुलेट तो 1 लाख डिवाइड बाय 100 इंटू 6 डिवाइड बाय 12, तो 1,50,000 पे पूरा 5%। ओके, 1 लाख इंटू 5%, 1,50,000 इंटू 5%, 7,500 प्लस 40,000 पे 2.5%, ओनली फॉर 6 मंथ्स, नो? हाँ, ओनली फॉर 6 मंथ्स मीन्स 2.5%। इसको ऐसे कर सकते हैं क्या? 1,50,000 इंटू 5 इंटू 6 डिवाइड बाय 1200। नो, ऐसे ही करना है। 1,50,000 इंटू 5% एंड 40,000 इंटू 5% इंटू 6/12। अच्छा, ओके। हाँ, तो कितना आया ये? हाँ, 8,500। हाँ, 8,500 इज माई इनकम। तो वेयर टू राइट दिस? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। हाँ, अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो इन्वेस्टमेंट, वाई इन्वेस्टमेंट इज अ प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट इज अ नॉमिनल अकाउंट, इट्स अ रियल अकाउंट। तो इंटरेस्ट अकाउंट में लिखेंगे ना 2 IND। 2 IND फॉर्मेट्स आर नॉट क्लियर है बेटा, धैर्य, टेक केयर। 8,500, ओके। तो 2 IND 8,500 एंड बाय रिसीवेबल, सो ये IND के क्रेडिट साइड में जाएगा। एंड व्हाट इज बाय रिसीवेबल? 500 एंड 500 का सेकंड इफेक्ट यू विल गिव इट इन दी क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, ओके। एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट को बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,90,000 क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, ये भी क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। एंड 2 IND इनकम साइड बाय इंटरेस्ट 8,500 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अंडरस्टूड? यस। हाँ, वन मोर टाइम, डिफिकल्ट एडजस्टमेंट है। यू आर नॉट वेरी क्लियर विथ अकाउंट्स बेटा, धैर्य। डोंट वांट टू डीमोटिवेट यू, बट एटलीस्ट आईना बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा टू इफेक्ट समझने में दिक्कत आ रहा है। मीन्स यू आर डूइंग इट बट नॉट प्रॉपरली, साइंटिफिकली नहीं कर रहे हो। हाँ, तो इंटरेस्ट इज नॉमिनल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट इज रियल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट इज कैरिड टू बैलेंस शीट, इंटरेस्ट इज ट्रांसफर टू P&L। चलो बोलिए। Interest on securities will come in investment side, credit side। कौन से अकाउंट में? इन्वेस्टमेंट नहीं, सॉरी, हाँ नहीं, सॉरी, इंटरेस्ट अकाउंट में। काम सब आ रहा है आपको, बिलीव ऑन योरसेल्फ। हाँ, इसको इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज डेबिट, क्रेडिट साइड, बाय कैश 8,000। और इन्वेस्टमेंट ऑन सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड, बाय टू कैश 40,000। अभी इन्वेस्टमेंट ऑन सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट साइड इन इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड इन डेबिट साइड क्या लिखूं? टू बैलेंस BD 1,50,000, और इसका जो भी 1,90,000 जो बैलेंस आएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट का। पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो ना बेटा, 8,500। हाँ, हाँ, तो उसका पहले तो 1,50,000 पे 5%, वो ठीक है, 8,500 यू अंडरस्टूड इट। हाँ, 8,500, वो 8,500 आएगा इंटरेस्ट अकाउंट में इन डेबिट साइड। क्या लिखूं? टू
IND 8500, हाँ, बहुत to मैकेनिकली कर रहे हो. टू IND 8500, देन हाँ ये हुआ ये चलो जाने इसका दीजिए. जो बाय रिसीवेबल 500, अभी इतना टाइम नहीं है. एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,90,000. आप थोड़ा सा पढ़ाई करके आना. ओके, मतलब यू हैव टू डू एटलीस्ट, यस यू आर आंसरिंग इट, पर थोड़ा पढ़ाई करना पड़ेगा. ओके, yes sir. ठीक है. नेक्स्ट, एंट्रेंस डोनेशन. एंट्रेंस डोनेशन, एंट्रेंस फीस, नॉट डोनेशन. यस कुमार भाई, I open entrance fees account. Entrance fees account. My voice is not clear. Kumar. चलो अनु गौतम. Entrance fees. Yes. हेलो सर, हाँ, आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून बेटा. चलो फास्ट बोलिए. इंट्रेंस अंजू. हाँ, बाय कैश वेरी 30,000. गुड. बाय कैश 30,000. कितने इफेक्ट्स? वन इफेक्ट ओनली. Only one effect. 75% is to be capitalized. कैपिटलाइज्ड. Capitalize means carried to balance sheet. So capital fund में जाएगा. To capital fund, balance sheet liability side में दोगे, and to IND 7,500. Got the concept? IND के credit side में buy entrance fees and balance sheet liability side capital fund में add करोगे 22,500. Got the concept? ओके सर. Oh, two effects for this, huh? ओके सर. Easy. चलो try one more. Now this is very simple. This is very 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 simple. Expense account. This is something very टू कैश. हाँ, टू कैश 7,000. to cash, very good, 7,000. One effect. यस सर. And 1st April 2021, टू ओपनिंग बैलेंस. two opening balance. It's a liability or asset? इट्स लाइबिलिटी बाय ओपनिंग बैलेंस सर. Not opening balance, by payable. Opening balance कभी ऐसा लिखते नहीं है. Either prepaid और payable ऐसे लिखते हैं. तो by payable 7,000. And where to give second effect? टू पेएबल. Opening balance sheet liability side. Oh yes sir. Second Sorry, effect, opening balance sheet liability side 7,000. And see, this account is getting tallied. So there is nothing in income and expenditure account. तो IND में कुछ भी नहीं जाने वाला है. So this is that's why बेटा I have taken this question कि I want to show you कि इसका IND में कोई संबंध नहीं आता है ये अकाउंट का. Okay, to cash which is outstanding of the last year. So IND में अंडा 0. Okay, IND में कुछ नहीं जाएगा. Okay sir. You are attending for the first time, Anu? No sir. You attended my lectures? Yes sir. आना चाहिए था ना. बाय पेएबल, टू पेएबल, बाय ओपनिंग कभी लिखते नहीं हम लोग. टू प्रीपेड, बाय प्रीपेड, बाय पेएबल, टू कैश, बाय IND. इफेक्ट्स अकाउंट्स तो आने चाहिए ना बेटा. अंजू. Actually, yes sir. ठीक है कोई बात नहीं. ये पहले से बात किया रहता तो आज ये डिफिकल्टी नहीं आती थी. नो प्रॉब्लम. चलो नेक्स्ट, बुक्स. अभी बुक्स सबको आना चाहिए. बुक्स एवरीवन विल डू. वेरी इजी. बुक्स इज लाइक इन्वेस्टमेंट. इट्स लाइक इन्वेस्टमेंट. नीलम. यस बेटा. यस सर. बोलिए. यस सर. सर बुक्स अकाउंट परचेस्ड है तो इसलिए टू कैश. वेरी गुड. वन इफेक्ट टू कैश 60,000. यस, वन इफेक्ट. 1st अप्रैल को बुक्स का बैलेंस है. बैलेंस तो व्हाट आई विल राइट? बैलेंस तो ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखते, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते. बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 lakhs. सेकंड इफेक्ट, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड.
asset side. Depreciation 10%. And depreciation, depreciation. 46,000. Second effect, IND debit side. IND debit side. And balancing figure, whatever the Closing amount. balance sheet. I will tell you the amount. 4,14,000. Second effect, Yeah. Balance sheet, closing balance sheet asset side. very good. चलो over. Audit fees भी बता दो. चलो audit fees. Very very important in illustration 10. Audit fees account. Okay. Now see here, receipt and payment is not given. Huh? Income and expenditure is given. Above problem में receipt payment था. अभी income and expenditure is given. So you don't have to write to cash by cash, but you have to write to IND by IND. चलो audit fees. To IND. इधर debit है to audit fee. You are attending for the first time? हाँ. So by first time, sir. You people are not aware about this LVC classes or what? No, sir. क्या इंटरेस्टिंग लगा आपको थोड़ा बहुत? हाँ, काफी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए. क्लियर हो गए ना? चलो अच्छी बात है. करते जाओ अटेंड जब भी ऐसा मौका मिले तो. ओके चलो बोलिए. एक्सपेंडिचर है सो बाय IND आएगा. वेरी गुड बाय IND 250. हाँ 250. अब ये ड्यूरिंग द ईयर का खर्चा है. ये क्या होता है? ड्यूरिंग द ईयर का एक्सपेंस होता है. ओके हाँ. ऑडिट फीस ऑफ 2022 इज येट अनपेड. दिस इज 2022 ईयर ओनली. ये ईयर ही 2022 है. हाँ तो इट इज येट अनपेड मीन्स क्या? तो पेबल बाय पेबल या टू पेबल? नहीं, पेबल बाय पेबल. टू पेबल क्लोजिंग है बेटा. ये क्लोजिंग है. टू पेबल 250. दिस इज स्टिल नॉट पेड. टू पेबल 250. वेयर इज द सेकंड इफेक्ट? बैलेंस शीट. क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. एसेट साइड. लाइबिलिटी साइड. सॉरी लाइबिलिटी साइड. ठीक है कोई बात नहीं. हाँ. And during 2022 audit fees of 21 was paid 200 rupees. Audit fee was 21. क्या लिखो? Audit fee for 2021 was paid 200. Paid तो cash. To cash 200. And second effect receipt and payment side. Second effect here we don't have to prepare IND. IND is given in the question and you have to solve receipt and payment. You have to prepare. So on the payment side you will write to cash. Payment side by audit fees. By audit fees. Payment side by audit fees or audit fees में to cash 200. Got the concept? Yes sir. Yes. And by payable. This is opening payable, no? And where to give by payable का second effect? Opening balance sheet. Liability side. If you noted all these entries, no beta, it is very simple. चलो next. चलो next. Try. और एक ट्राई कर लो. चलो कुछ नहीं. जनरल एक्सपेंसेस. IND. बाय. जनरल एक्सपेंसेस का अकाउंट बनेगा सर या डायरेक्टली IND में जाएगा? क्यों अकाउंट ही बनाओ ना. whenever there is adjustment prepare account. Okay. That will be easy, no? हाँ जब no adjustment like this, no, you can directly write it in IND. आपने पहले NPO किया हुआ है कि नहीं किया हुआ? नहीं. अच्छा कोई बात नहीं. ओके तो जनरल एक्सपेंसेस by IND 500. See students, now only कि जो भी स्टूडेंट्स है, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग जरा सा LVC का क्लासेस देखिए
तो आई हैव नॉट टेकन ऑल टॉपिक्स. इफ यू सर्च एनी टॉपिक नो कि संकेत सर का एनपीओ या संकेत सर सिंगल एंट्री और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, तो यू विल गेट इट. ओके. और इन पुणे ब्रांच में तो भी आपको मिल ही जाएगा, इधर नहीं मिला तो यू कैन, इफ यू आर गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट, तो यू कैन सॉल्व लाइक दिस कि आपको वहां पे मिल जाएगा. तो आपको ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहता है, तो आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा. इवन हम लोग शाम को भी 9 to 10 हम लोग पुणे ब्रांच ऑफ ICAI जो पुणे क्लासेस आपने किया, तो यू विल गेट दैट. ओके. तो वहाँ पे भी आप लोग अटेंड कर सकते हो. और यहाँ पे LVC क्लासेस वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर नाउ, जनवरी या सितंबर आई डोंट नो, बट LVC क्लासेस लाइव क्लासेस ही रहते हैं सिमिलर वे में. तो यू कैन इंटरेक्ट विथ अस. तो आप लोगों को अभी इंटरमीडिएट में इसका फायदा लेना. ओके. तो इंटरमीडिएट में अभी वो गलती मत करना, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है. ज़्यादा पेड करके लेना रहेगा तो भी चलेगा, मैं आपको बता दूंगा. ओके. अकाउंट नंबर, पर अभी तो भी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है. तो वाई यू हैव टू टेक क्लासेस बाय पेइंग, और इतना अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हो आप हमारे साथ. तो ये नीलम जी आते जाइए, अच्छा लगेगा आपको. ओके. श्योर सर. चलिए. हाँ, तो बाय IND कितना? 500. 500. हाँ. एंड आउट ऑफ दिस प्रीपेड कितना है? 60. तो प्रीपेड कहाँ पे? इंश्योरेंस प्रीपेड आ गया है ना, तो उससे पहले तो वो निकालना इट पड़ेगा इंक्लूड्स. उसमें नो से। इट इंक्लूड्स. हाँ. हाँ, तो बोलिए. नहीं, ठीक है. इंश्योरेंस प्रीपेड तो बेटा ये देखो, बाय प्रीपेड होगा ये 60. अंडरस्टूड. इसलिए प्रोफॉर्मास को याद रखो बेटा, मैंने प्रोफॉर्मा लिख के दिया ना. देखो, पेबल होगा तो इधर लिखना है, एंड प्रीपेड होगा तो एक इधर, ऐसे ही याद रखो. याद रहेगा? ओके सर. पेबल होगा तो लाइबिलिटी से शुरू, क्रेडिट साइड से शुरू करने का, एंड प्रीपेड होगा तो डेबिट एंड लास्ट लाइन क्रेडिट. तो बाय प्रीपेड सेकंड इफेक्ट किधर दोगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट, एसेट साइड. And to cash is a balancing figure 560. Okay. Okay sir. Thank And you so second much. effect payment side में. Second effect payment side. See students, why you are not getting these pro formas? Because you are weak in account preparation. ये reason है. Many students who are attending for the first time, make sure that you will prepare like this. Every adjustment you will improve your accounting confidence by preparing accounts. यदि आप ये छोटे छोटे एडजस्टमेंट लेके if you solve question, no, that will be more helpful. See, to improve speed is a next target. How to solve question is the next target. But when you are doing revisions, you have to focus on all these small adjustments. और यदि आपने ये all adjustments complete किए ना, तो it will be very easy.